السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا قبرستان میں جنات ہوتے ہیں؟ کیا جو گورکند ہوتے ہیں ان کو جنات دکھتی ہیں؟ کیا جادو سے انسان کی موت ہو سکتی ہے؟ آج کے قصے میں ہم یہی سنیں گے۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے سپورٹ کریے، میرے چینل کو لائک، جب بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو لائک لازمی کر دیا کریں، پہلے ہی کر دیں، پہلے ہی اچھی نہ بھی لگے، لیکن میں سٹوریز جو لے کے آتا ہوں وہ سٹوریز نمبر 1 اوریجنل سچی، نمبر 2 خوفناک، انتہائی جو خوفناک ہوتی ہے وہ میں وہی سٹوری سلیکٹ کرتا ہوں اور میں یہاں پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو پلیز جو بھی ویورز ہیں، حالانکہ بہت تھوڑے ویوز ہیں، پھر بھی جتنے بندے ہوتے ہیں اتنے میرے لائک نہیں ہوتے، وہی 3-4 لائک، وہ میرے 2 بندے ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں۔ مجھے جب میں ان کے کمنٹ پڑھتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، ایسے جیسے مجھے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ پلیز لائک کر دیا کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آج کے قصے کے لیے آپ کو لے کے چلتے ہیں مصر، ایجپٹ۔ حمدی شخص کا نام جو اپنا قصہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں غورکند ہوں اور یہ میرا جدی پشتی یہی کام ہے، میرے باپ دادا سب لوگ غورکند تھے اور وہیں سے، یعنی یہ وراثتی کام ہے ہمارا۔ میری زندگی بھی آدھی گزر چکی اسی کام میں، لیکن مجھے آج تک کبھی میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھار کوئی آواز سن لی چیخ کی، چلانے کی، بس، یعنی اس سے زیادہ کبھی نہ میں نے قبرستان میں کوئی جن دیکھا، نہ میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش ہوا۔ لیکن ایک دفعہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور وہ ایسا واقعہ کہ جو میں جب تک زندہ رہوں گا شاید اس کو نہیں بھلا پاؤں گا۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حد سلامہ۔ حد سلامہ جو تھا، یہ بندہ روزانہ قبرستان میں آتا تھا جو اس کے ماں باپ یا اس کے بہن بھائی فوت ہو چکے تھے، ان کے لیے آ کے دعائیں مغفرت کرتا تھا اور پھول ڈالتا تھا۔ اس کا ڈیلی کا یہی معمول تھا، اور یہ بندہ بھی انتہائی شریف بندہ تھا، علاقے میں مشہور بندہ تھا یہ۔ جب بھی یہ قبرستان میں میرا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا تھا، مجھے بولتا تھا تم کیا حال ہے، ٹھیک ہو، کچھ ضرورت ہے، میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں، یعنی یہ اس قدر اعلیٰ اخلاق کا بندہ تھا۔ ایک دن خبر چلی کہ حد سلامہ انتقال کر گئی۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو نہ روئی ہو اس کی موت کے اوپر، مگر اس کے جو بچے تھے، بیٹے اس کے، وہ دکھی نہیں تھے، نہ وہ رو رہے تھے۔ پورے جنازے میں جتنے لوگ تھے سب رو رہے تھے الا اس کی فیملی کے لوگ، جو بھی افسوس کے لیے اس کے بیٹوں کے ساتھ ملتا، یہ تکبرانہ انداز میں بس ان کے ساتھ ملتی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک طرف باپ اور دوسری طرف اس کے بیٹے، کتنا زمین آسمان کا فرق ہے ان میں۔ باپ انتہائی شریف اور عاجز انسان، جبکہ اس کے بیٹے متکبر۔ اس کی قبر کھودی گئی، اس کو جنازہ لایا گیا، جنازہ دفن کیا اس کو۔ اسی رات یہ حد سلامہ کی کہ اس کے بیٹے کی بیوی آتی ہے، چھوٹے بیٹے کی، مجھے کہتی ہے کہ میرے گھر آ کے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا جو گھر ہے وہ بھی قبرستان کے قریب تھا، کوئی دور تھی، یعنی تقریباً 50 میٹر۔ مجھے آ کے کہتی ہے حمدی، جب ہم لوگ اپنے سسر کو کفن دفن کر رہے تھے، اس کا کفن اس کو نہلا کے پہنا رہے تھے، تو میرا سونے کا کڑا مجھے لگتا ہے کہ اس میں رہ گیا ہے، کیونکہ مجھے میرا سونے کا کڑا نہیں مل رہا، میں نے پورا گھر چھان مارا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو ابھی کافی رات کا ٹائم ہو چکا ہے، تو تم صبح فجر کی نماز پڑھ کے آ جاؤ تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ کہتی ہے نہیں، مجھے ابھی سرچ کر کے دو، کیونکہ وہ میرا بڑا قیمتی کڑا ہے۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا مکمل، یعنی اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بالکل خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی۔ یہ میں اس کو کل کے صبح کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اصرار کرتی گئی، یہاں تک کہ اس نے میرے ساتھ چلانا اور لڑنا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ میں ٹارچ اندر سے لے کے آیا اور اس کے ساتھ قبرستان کی طرف چل دیا۔ اب جو یہ قبرستان ہے یہ پرانے وقتوں کے، یہاں پر ایسے دفن کرتے ہیں کہ ایک بندے کو دفن کیا، اس کے اوپر ایک دروازہ ہے جو اس کی قبر کو بند کر دیتا ہے۔ ایسی قبریں ابھی بھی مصر میں آپ کو
देखने को मिलेंगी जो पुराने कब्रिस्तान में। बहरहाल मैं चाबियां लेके इनको साथ लेके जाता हूँ, तो ये मुझे कहती है कि तुम रास्ते में चेक करो जहाँ से जनाजा लेके आए थे, हम लोग इधर अंदर देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर निकल गया, जाके रास्ते में तलाश कर रहा हूँ। ये दोनों अंदर चली गई। मैंने उनको दरवाजा खोल दिया था कब्र का। तो ये जब मैं वापस आया तो मैंने नहीं मिला, तो कहती है हाँ मुझे मिल गया, वो कफन के अंदर ही था। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा हुआ मिल गया। वापस मैंने कब्र का दरवाजा बंद किया और अपने घर आ रहा हूँ। लेकिन मुझे एक हैरानगी थी कि ये दोनों गाड़ी से नहीं आई थी, पैदल ही। बहरहाल ये चली गई। ये रात नॉर्मल गुजर गई, लेकिन जो नॉर्मल नहीं था वो मेरा इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह एक और मैयत आई। उसके लिए मैंने कब्रिस्तान का दरवाजा खोला, उन लोगों ने जनाजा किया, कब्र मुर्दा दफनाया और चले गए। रात को जब मैं अपने घर गया तो मुझे मेरी बीवी नहीं मिल रही। तो देखते देखते वो साथ वाले कमरे में गया तो मेरी बीवी कोने में बैठ के रो रही है और कांप रही है। मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत, क्यों रो रही हो? मेरी तरफ देख के कांप रही है, कहती है कि हमारे घर में वो हद सलाम आया था। मैंने कहा हद सलाम कहाँ से आ जाएगा, वो उसको कल दफन कर दिया, और जो एक दफा मर जाए वो कभी वो लौट के वापस नहीं आता। कहती है नहीं, वो हमारे घर में आया था और ये हमारे सेहन में बरामदे में चक्कर लगा रहा था, यहाँ से वहाँ टहर रहा था। मेरे ऊपर यकीन नहीं तो बच्चों से पूछ लो। मैंने अपने बच्चों से पूछा, उन्होंने भी यही बात कही जो मेरी बीवी ने कहा। मैं हैरान था कि वो बंदा कैसे आ सकता है। मैंने चाबियां ली, वापस मैं कब्रिस्तान गया। ये मेरा जिंदगी का पहला लम्हा था कि मुझे खौफ आया। वो जो मेरी फीलिंग थी वो मेरे ऊपर पहली दफा आई कि मैं मरऊब हूँ, खौफजदा हूँ। मैं दरवाजा खोल के अंदर गया। मैंने इतना बड़ा काला कुत्ता अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो कुत्ता था इंतहाई बड़े साइज का और उसकी लाल आंखें, वो मेरे ऊपर खौर है, यानी मेरे ऊपर गुरगुरा है। मैंने आज से पहले इस इतने बड़े साइज का कुत्ता और इस कदर खौफनाक कुत्ता मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने जल्दी से वहां से बाहर निकल के दरवाजा बंद किया और दरवाजे को पकड़ लिया कि कहीं ये बाहर निकल के मेरे ऊपर हमला ना कर दे। मैं वैसे ही हाथ रख के दबाए वहां पर खड़ा हूँ। 3 आदमी जा रहे थे जो मेरे गाँव के ही थे, वो रास्ते से गुजरे तो उसने कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि अंदर कुत्ता है। तो वो हंसने लग गए कि भाई तू कुत्ते से डरता है। कहता है नहीं, मैं कुत्तों से नहीं डरता, लेकिन जो कुत्ता मैंने देखा उस कुत्ते से मुझे डर लगता है कि वो बहुत खौफनाक कुत्ता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम दरवाजा खोलो, हम देखते हैं। मैंने दरवाजा खोला, इधर उधर देखा, कोई कुत्ता नहीं। तो उन्होंने कहा किधर है कुत्ता, तेरा वहम है। तो मैं सोची पड़ गया कि यार जो मैंने अभी कुत्ता देखा वो किधर है, कोई छोटा कुत्ता भी नहीं, बड़ा और खौफनाक कुत्ता। तो मैंने कहा हाँ शायद मुझे मेरा वहम हो। दरवाजा बंद किया और वापस। खैर मैं वहां से घर आ गया। घर आके बैठ के चाय पी रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। मेरी बीवी मेरे साथ बैठी हुई है। तो मुझे बाहर से आवाज आई, कोई मुझे पुकार है, हमदी हमदी। तो मैंने बीवी को कहा कि तुम्हें कोई आवाज आ रही है मुझे पुकारने? कहती है नहीं। तो मैंने समझा कि शायद मुझे सुनाई दी ऐसे ही, लेकिन है नहीं। दोबारा हम लोग टीवी देख रहे हैं कि फिर मुझे आवाज आई, हमदी बाहर आओ। मैंने कहा कौन है इस टाइम? मैं घर से बाहर जाके देखता हूँ मगर वहां कोई नहीं। मैं बोलता हूँ कौन है, कौन मुझे बुला रहा है, मगर मुझे कोई ना बंदा कोई दिखा वहां पर, ना किसी ने मेरी बात का जवाब दिया। यहाँ तक कि मैं अपने पूरे घर के गिर्द चक्कर भी लगा के आया। खैर मैं वापस आ गया कमरे में। जब मैं दोबारा घर में आया तो फिर मुझे आवाज आई, हमदी इधर आओ, दरवाजा खोलो। तो मैंने बाहर निकल के देखा कि वो सामने कब्रिस्तान में कोई है। तो शायद कोई अंदर रह गया। मैं चाबियां लेके जाता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, लेकिन मुझे वहां कोई नहीं दिखता। मैं यहाँ पर कब्रों में घूमता हूँ, टॉर्च मेरे पास, घुमाता हूँ, कौन है, कौन मुझे आवाजें दे रहा है। और मैं कब्रों के बीच में गुजरता जाता हूँ। अल्लाह, जब मैंने देखा वो दूर एक शख्स खड़ा है जो काला है, यानी अंधेरे में ऐसे जैसे साया है। उसने मुझे इशारा, हाथ ऊपर उठा के इशारा किया। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, देखिए मैं आ रहा हूँ। जब मैं वहां पर गया तो वो शख्स नहीं, वो ही कुत्ता जो मैंने इसकी कब्र में देखा था, हद सलाम वाली। मैं वापस भागता हूँ स्पीड से,
चिल्लाता जाता हूँ कि मेरा पाँव कब्र से टकराया, मैं गिरा और मेरा सर किसी पत्थर से टकराया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरा बेटा मुझे उठा रहा है, अब्बा क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा मैं किधर हूँ? मैं वहीं कब्रिस्तान में जहाँ पर मैं गिरा था वहीं गिरा हुआ हूँ। तो मेरा बेटा, मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे घर ले चलो। मेरा बेटा मुझे मेरे अपने घर में ले गया, लेकिन मेरे सर में शदीद दर्द था और वो निशान भी था जख्म का जो मुझे वहां से लगा। मैंने बेटे को पूछा तुम्हें कैसे पता कि मैं इधर हूँ? तो कहता है कि मैं घर में था, तो तुम यहाँ से जब निकले घर से तो 2 घंटे हो गए, तुम वापस नहीं आए। आवाज़ें दी लेकिन कोई जवाब नहीं था। मुझे अम्मा ने कहा कि जाओ कब्रिस्तान में देखो, वहीं तो नहीं है कहीं। तो जब मैं गया तो तुम मुझे वहाँ गिरे मिले। तो मुझे बेटा कहता है कि अब्बा कुछ है? मैंने कहा नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, चलो सो जाओ। जब मैं लेटा, मैं सोया तो मैं बुरे ख्वाब देखता हूँ डरावने, कि यही हद सलामा बैठा हुआ काले सांप खा रहा है और मेरी तरफ बड़े खौफनाक तरीके से देखता है। तो मैं उठ गया, देखा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर मैं सो गया। ऐसे ही मुझे रात भर डरावने ख्वाब आते रहे। सुबह मैं उठा तो बीवी को मैंने कहा मेरे लिए नाश्ता बना। उसने नाश्ता बनाया, मैं बैठ के खाने लगा हूँ तो मुझे कहती है कि मैं तुमसे एक बात करनी। मैंने कहा हाँ बोलो। कहती है रात को मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने हद सलामा को देखा। जब मेरी बीवी ने मुझे ये कहा कि मैंने ख्वाब में हद सलामा को देखा है तो मैं जल्दी से अपनी जगह से उस तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ हाँ बोलो, सुनाओ मुझे। कहती है कि मैंने ख्वाब देखा हद सलामा, उसकी टांग के ऊपर एक काला बिच्छू है। तो मुझे पुकार के कहता है कि इधर आओ, मेरी मदद करो, ये मेरी टांग से बिच्छू हटा दो। तो जब मैंने ये देखा तो मैं खौफ से उठ गई। तो मैंने कहा देखो ये तुम्हें ख्वाब है इसलिए तुम्हें कोई वहम हो गया या तुम्हें कुछ सोचें आ रही हैं ऐसी, बहरहाल अज़कार करो, अल्लाह खैर करेगा। मैंने क्या किया कि जो हद सलामा है इसके मोहल्लेदार का एक मेरा दोस्त था, मैं उसको फ़ोन करता हूँ। उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा वो जो हद सलामा उसका बड़े बेटे का मुझे नंबर चाहिए। कहता मैं उसका तुम्हें नंबर नहीं दूंगा। क्यों? कहता जब से वो हद सलामा उसका इंतकाल हुआ है इसकी औलाद बिल्कुल बदल गई, सारे अपने अपने कामों में हैं, लेकिन उनका असलूब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कोई इनके साथ बातचीत कर सके। बहरहाल मैंने उससे इसरार किया, तो मैंने उसे कहा कि नहीं मुझे उसका बड़ा ज़रूरी नंबर चाहिए। तो खैर उसने दे दिया, कहा कि मेरा नहीं बताना। मैंने इसके बड़े बेटे को कॉल की, हाल हवाल बताया। मैंने बोला कि मैं फलाना शख्स बात कर रहा हूँ, तो ये यार ये ऐसे मामला हैं कि तुम्हारा वालिद हमें ख्वाब में आता है। तो मैंने उसको सारी बात बताई, वो खामोशी सुनता रहा। जब मैंने उसको बताया कैसे से ख्वाब आते हैं तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी, मुझे गालियाँ तक दी और कहा कि तुम और हद सलामा यानी उसका बाप दोनों जहन्नम में जाओ, और फ़ोन बंद कर दिया। मैं ये मंजर देख के बड़ा परेशान था कि यार ये कैसे मेरे साथ पेश आया और इसने क्या बात कही कि अब्बा भी जहन्नम में जाए और तुम भी। इनके बाप ने इनके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहरहाल ऐसे ही इस रात मैं घर में बैठा हुआ हूँ कि किसी ने बड़े जोर से दरवाजा खटखटाया। तो मैं बाहर जाके देखता हूँ कौन है, आवाजें देता हूँ लेकिन कोई नहीं। मैं अपने घर का दोबारा चक्कर लगा के आता हूँ कि यार किसी ने दरवाजा खटखटाया और बड़े जोर से। तो जब मैं मुड़ के अपने मेन दरवाजे की तरफ आया तो देखा कि हद सलामा मेरे घर के अंदर दाखिल हुए। तो मैं इसके पीछे भाग के जाता हूँ, सामने मेरी बीवी खड़ी है। कहती क्या हुआ, क्यों भागते हुए आए हो? तो मैंने कहा कि तुमने कुछ देखा, कोई अंदर आया? कहती है नहीं। मैंने कहा मैंने अभी देखा कि हद सलामा हमारे घर में आया। कहती है नहीं शायद तुम्हें वहम हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मैंने तुम्हें कहा था ना मैंने इसको देखा है, तुमने उस वक्त मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं किया था, आज तुमने अपनी आंखों से देखा। मैं अपनी बीवी के साथ यही बातें कर रहा हूँ कि एक औरत के रोने की आवाज आती है जो कब्रिस्तान से आ रही है। तो मैंने कहा कि तुमने ये रोने की आवाज सुनी? कहती हाँ कोई औरत रो रही है। तो मैंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, देखते हैं कौन रो रहा है। तो वो कहती है नहीं छोड़ो। मैंने कहा नहीं देखो कोई औरत है, शायद किसी का आज मरा हो, वहाँ पर आके उसकी बेटी या उसकी बीवी रो रही हो, चलाओ देखते हैं, या उसको कोई मुश्किल हो तो तुम औरत हो, तुम उसकी वो मुसीबत हल कर देना, या कि मैं मर्द हूँ तो उसका हाथ भी नहीं लगा सकता। तो वहाँ से टॉर्च ली और मैं अपनी बीवी को लेके चला गया। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोला, अंदर जाते हैं, ये रोने की आवाज़ वही हद सलामा के कब्र से आ रही। तो मैंने कहा चलाओ। तो मेरी बीवी कहती है देखो मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, वापस चले जाओ। मैंने कहा नहीं
आओ कुछ नहीं होता। कहती है ऐसा ना हो कि कुछ हो और हमारी गर्दनें काट दे, हमें मार दे, कोई कत्ल कर दे। मैंने कहा नहीं, अल्लाह खैर करेगा। आओ। जब मैं उसकी कब्र के करीब गया तो जो दरवाजे पर उसके देखा हूँ कि कोई औरत बैठी हुई है। मैंने कहा ये तो उसकी बेटी है सलामा की, बेचारी इधर आके भी रो रही है। लेकिन मुझे हैरान किया कि दरवाजा तो बंद है, ताला चाबियां मेरे पास है, ये अंदर कैसे गई? तो जब मैंने दरवाजा खोला मैंने कहा कि बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो इस टाइम आके? ताऊद मैंने शैतान पढ़ो, अल्लाह का जिक्र। कहते हैं जब मैंने ये कहा कि शैतान से पनाह मांगो तो उसने हमारी तरफ देखा। वो जो मंजर था वो देखा, मैं और मेरी बीवी दोनों नहीं बर्दाश्त कर सके, बेहोश हो। वो मंजर ऐसे था कि जब मेरी बीवी ने उसको उसकी पीठ के ऊपर हाथ रखा, थपथपे दी कि बेटी अल्लाह से पनाह मांगो शैतान से, तो जब उसने हमारी तरफ मुंह किया था तो उसका मुंह से जैसे जला हुआ है और वो उसके मुंह से मट्टी निकल रही है। ये मंजर देख के हम लोग बेहोश हो गए। हमें सुबह लोगों ने दोनों को उठाया, हम दोनों वहीं गिरे हुए थे। वो कोई मैयत लेके आए थे, देखा कि यहाँ पर ये दोनों गिरे हुए हैं। क्या हुआ? मेरी बीवी कहती है कि यहाँ पर हमने इफरीत देखा। किसी बंदे ने हमारा यकीन नहीं किया। इफरीत देखा? कैसे देखा? बहरहाल किसी ने हमारा कोई यकीन नहीं किया। हम दरवाज़ा बंद किया उसकी कब्र का और मैं और मेरी बीवी वापस घर में आ गए। जब घर में आए तो मेरी बीवी अपना सामान पैक कर रही है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम भी चलो। मैंने कहा देखो अल्लाह की बंदी, कुछ नहीं होता, सब्र करो, बस अस्कार करो। कहती है नहीं, मैं अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रह सकती। उसने सामान लिया, बच्चे साथ लिए और अपने माँ के यहाँ चली गई। अब मैं नहीं जा सकता था, क्यों कि कब्रिस्तान का सारा सिस्टम मेरे पास है और यही मेरा काम भी है और यहीं से मैं कमाता हूँ और यहीं से मेरा घर भी चलता है। मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? बहरहाल मैं नहीं गया, मेरी बीवी चली गई। मैंने उसी बंदे को फ़ोन किया जो हद सलामा का हमसाया था। मैंने उसे कहा कि क्या हालचाल है, हवाल हवाल से पूछे, हद सलामा के घर के बारे में पूछा। कहता है उसकी बेटी 2 दिन पहले जल गई थी। कैसे जल गई उसकी बेटी? कहता है कोई पता नहीं, बस उसके कमरे में वो सोई भी थी, आग लग गई और वो बेचारी का सारा मुंह जल गया। वैसे भी उनके जो घर के हालात है ना वो बिल्कुल बदल चुके हैं। उसके बेटे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सोया हुआ है और रातों को उठ के बाहर फिर रहे होते हैं। उनका पता नहीं क्या हो गया उनको। तो मैंने उसे कहा कि यार मैंने कल हद सलामा की बेटी को कब्रिस्तान में देखा, वो जली हुई थी, मुंह जला हुआ था। कहता है तुम मेरे से बात सुन के और अब खुद से एक बात कर ली है। मैं अभी तुझे बता रहा हूँ वो जली है 2 दिन पहले, तू उधर, तुझे कैसे पता चल गया और तूने उसको कैसे देख लिया? कहता है वल्लाह मैंने उसको कब्रिस्तान में देखा, लेकिन उसने मेरी कोई बात का यकीन नहीं किया। हम उसने फ़ोन बंद कर दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या हो रहा है कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं सारी ज़िंदगी कब्रिस्तान में निकाल दी, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि मैं चीज़ें देखता हूँ और ये मेरे साथ मामला तूल पकड़ते जा रहे हैं। कभी ऐसा पहले हुआ नहीं था, ना कभी कुछ देखा था। हम रात का टाइम हुआ इशा का, तो मैंने खाना वगैरह बनाया क्योंकि अब बीवी तो मेरी थी नहीं, खुद ही मैंने खाना बनाया। अब मैं खाना रख के खाने लगा हूँ कि मैं बाहर से आवाज़ें सुनता हूँ कुत्तों की और गधों की। यहाँ गधे कहाँ आ गए? ना वो यहाँ पर खेत है, ना यहाँ किसी लोगों ने गधे रखे हुए हैं। ये गधों की आज कैसी आवाज़ें आना शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद ये आवाज़ें आना बंद हो गई। मैंने अपना खाना खाया और थोड़ी देर बैठा रहा, यहाँ तक कि रात के 11 बज गए। मैंने कहा चलो 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ और सो जाता हूँ। मैंने ऐसे ही वुदू किया, नमाज पढ़ी, कमरे की खिड़की बंद की और मैं सो गया। मैं सोया था, तकरीबन मुझे कुछ मिनट हुए होंगे कि किसी ने जोर से मेरी खिड़की खटखटाई। तो मैं उठ के बैठ गया, बाजी कौन है कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं। लेकिन जो मैंने मंजर देखा कि ये खिड़की किसने खोली, खिड़की तो मैंने बंद की थी। मैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता हूँ, दोबारा जाकर खिड़की बंद करके और आके लेट जाता हूँ। मुझे लेटे हुए कोई तकरीबन 7-8 मिनट हुए होंगे कि मुझे कमरे में गर्मी महसूस होती है, शदीद गर्मी। तो जब मेरी आंखें खुलती, मैं आंखें खोलता हूँ तो सामने मुझे टांगे नजर आती हैं, कोई औरत खड़ी है। जब मैंने उसकी तरफ देखा और मैं वो मंजर देख के सख्ते में आ गया कि वो हद सलामा की बेटी, उसका मुंह जला हुआ है, ये मेरे सामने खड़ी है। मैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और अपने घर से निकल के भाग गया। अब मैं भागता जा रहा हूँ कि वहाँ पर एक जामे मस्जिद थी बड़ी, जहाँ पर हम जुम्मा पढ़ते थे। मैं उसके दरवाजे के ऊपर चला गया, देखा दरवाजा बंद है, मैं वहीं बैठ गया और मेरे ऊपर नींद का गलबा आया, मैं सो गया।
मुझे किसी ने उठाया तो देखा कि ये तो इमाम मस्जिद है। कहता है यहाँ हमदी क्यों सो रहे हो? तो मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बात थोड़ी सी लंबी है। कहता चलो ठीक है, आओ फजर की नमाज पढ़ते हैं और मुझे बताओ। मैं उठा, उसके साथ गया, मैंने फजर की नमाज पढ़ी और उसको सारा बात बताई मैंने। तो वो कहता है देखो यार, ये ऐसा तुम्हारे साथ वहम है, तुम अज़कार किया करो, नमाज की पाबंदी करो और अज़कार किया करो, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कहता चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि रात को मैं किसी को बुलाता हूँ, एक शरई दम करने वाला है, तो फिर देखते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। बहरहाल मैं वहाँ से उठा, कब्रिस्तान गया, अपना सारा दिन वहाँ गुजारा। मगरिब से पहले पहले ही मैं सारा बंद करके और इसी मस्जिद में आ गया। मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके साथ थोड़ी देर बैठा, इशा का टाइम हुआ तो ये इमाम मस्जिद और उसके साथ वो शरई दम करने वाला शेख वो आ गया। उसको मैंने अपना सारा वाकया सुनाया और आके शरई दम करने वाला शेख था। कहता चलो ठीक है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। मैं और ये इमाम मस्जिद और ये शरई दम करने वाला शेख तीनों मेरे घर में आ जाते हैं। जब वो मेरे घर में आए, बैठे हुए हैं, तो एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है कब्रिस्तान से। तो मुझे ये शेख कहता है कि तुम आवाज़ सुन रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। कहता चलाओ। तो मैंने चाबियां ली, इनके साथ कब्रिस्तान चला गया। जब उसका दरवाज़ा खोला तो उसके अंदर से आवाज़ आ रही है कि वहाँ बैठ के कोई रो रहा है, कोई औरत रो रही है। तो ये जो शरई दम करने वाला, इसने पढ़ना शुरू कर दिया। जब इसने पढ़ना शुरू किया तो आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। तो मैंने उसका दरवाज़ा खोल के देखा, उसमें कोई नहीं है। ये बाहर खड़ा होके कुरान पढ़ रहा है, अज़कार पढ़ रहा है कि बाहर कब्रिस्तान के बाहर से बहुत सारी गधों की आवाज़ें शुरू हो गई, हिनहिनाने की, और इनकी आवाज़ बंद हुई, कुत्तों की आवाज़ शुरू हो गई। काफी देर तक ये मामला चलता रहा। ये बंद हुई तो किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है, ऐसे जैसे ये इसको कोई अजाब दे रहे हैं। फिर ये सारी आवाज़ें बंद हो और हम लोग वापस घर में आ गए। जब घर आए तो ये शेख मुझे कहता है कि मुझे सारा वाकया शुरू से बताओ। तो मैंने इसको सारा वाकया शुरू से बताया कि पहले दिन जब उसको दफन करके हम लोग घरों में आ गए तो रात को इसकी छोटी बहू और इसके साथ एक औरत आई थी। इन्होंने मुझे कहा कि मेरा कड़ा जो है वो घूम गया है, तो वो देखना है। मैं बाहर तलाश करता रहा, ये दोनों अंदर तलाश करती रही। कहता है ठीक है, फजर की नमाज के बाद दोबारा मुझे वहां से लेके जाओ और इंशाअल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। अब ये रात को बैठ के अज़कार कर रहे हैं तो मुझे बाहर से चीखों की आवाज आती है, तो ये इशारा करता है कि बैठे रहो, डरो नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे मेरी अम्मी बाहर से आवाजें दे रही है। अम्मा मेरी कहती है हमदी हमदी। तो मैं उठ के जाने लगा हूँ तो इसकी आंखें बंद थी, इसने मुझे हाथ से इशारा किया कि बैठ जाओ। मैंने कहा शेख ये मेरी माँ है। कहता है नहीं ये तेरी माँ नहीं है, बैठे रहो। तो मेरी माँ फिर मुझे पुकार रही है हमदी बाहर आओ, हमदी दरवाजा खोलो। तो मैं उठता हूँ कि यार मेरी माँ है, लेकिन ये मेरा हाथ पकड़ के बिठाता, कहता है तुझे कहा कि ये तेरी माँ नहीं है, बैठ जाओ और जिक्र करो, जो तुम्हें आता है, कुरान पढ़ना आता है वो पढ़ो, नहीं तो कुरान खोल के वो पढ़ो और ये अज़कार करो। मैं बैठ के अज़कार करना शुरू करता हूँ कि वही जो मेरी अम्मा की आवाज़ वो बदल के कुत्ते की आवाज़ आ रही है, कुत्ता बोल रहे हैं। हाल महम ये रात कटी, फजर का टाइम हुआ, हम लोग मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, उसके बाद चाबियाँ लेके कब्रिस्तान। जब कब्रिस्तान में जाते हैं उसका दरवाज़ा खोलते हैं, ये बैठ के पढ़ाई शुरू करते हैं। वहाँ औरत की चीखने की आवाज़ें आती हैं लेकिन कोई औरत है नहीं। मैं फुल डरा हूँ लेकिन ये पढ़ता जा रहा है। इसने जब उसकी कब्र खोल के उसके कफन खोला तो अंदर से एक काला शापर निकाल लिया। उस थैले में क्या है? कहता है खलास अभी इसको तुम बंद कर दो और तुम्हारे घर चलते हैं। उसको बंद करके मेरे घर में आके मुझे कहता है मुझे किसी डब्बे में किसी बर्तन में पानी दो। मैं पानी देता गया, पानी दिया इसको, ये पढ़ता गया और अंदर से बाल निकले, बालों के ऊपर 4 गिरे लगी हुई थी। ये पढ़ता गया, बोलता गया, पानी का रंग चेंज हो रहा है। उसके बड़े बेटे की तस्वीर, छोटे बेटे की, उससे छोटे बेटे की तस्वीर, फिर इसकी बेटी की तस्वीर। यानी ये तो तिलिस्मात थे, ये तो सहर जादू था। यहाँ तक कि उसने सारा कुछ खोल दिया। कहता है खलास आज के बाद तुम्हें भी कुछ नजर नहीं आएगा और उसके घर के मामला भी ठीक हो जाएंगे। ये जो इसकी छोटी बहू है, ये वो जो जिसको लेके आई थी वो जादूगरनी थी, उससे इसने जादू करवाया था और इसी की मैयत के अंदर जाके इसने उसको रख दिया था। इस वजह से तुम्हें भी तंग कर रहे थे कि क्योंकि तुमने दरवाजा खोला था और उसके घर के भी हालात तुम्हारे सामने ही हैं। इसके बाद मेरे भी हालात नॉर्मल हो गए। मैंने भी कभी कुछ नहीं सुना ना कुछ देखा और उसके बेटों के भी।
اس کے بیٹے بھی میرے ساتھ بعد میں آ کے ملاقات کی، میں نے اس کو بتایا، وہ بہت نادام ہوئے کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو کیا تھا وہ ہم نے نہیں کیا تھا، ہماری حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ بہرحال یہ حمدی کا قصہ تھا، پسند آئے تو کمنٹ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔